Good morning, student of class 3. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, welcome back to your EVS class, student. Today date is 17 February 2021 and I am teaching you chapter number 16, and name of the chapter is Weather and Season. Name of the chapter is Weather and Season. Okay, so let's do little recapitulation what we have done in our previous video. So student, in the previous video the topics which I covered, that are, I explained you what is the difference between a weather and climate, why weather changes, okay, how weather affect both plants and animals, and after that water cycle, which is a continuous process, and after that we start discuss that there are, due to change in weather, there are different types of seasons in our country, and if you count the number of seasons in our country, then it is 5. There are 5 seasons: winter season, summer season, monsoon season, spring season, and autumn season. Okay, so I have already discussed 2 seasons, that is winter season and summer season, and spring season. I have already discussed 3 seasons, that is winter season, spring season, and summer season. Okay, now monsoon season we have already, this season also we have, I have explained you in the previous video. So student, today we will start with autumn. Today we will start with the autumn season. Okay, now let's start. The rainy season is followed by a short season, and that season is known as autumn. The rainy season, the rainy season is followed by the short season of autumn, in the month of October. Okay, rainy season is followed by a short season of autumn in the month of October. See student, there are 5 seasons, that is winter, summer, spring season, monsoon season, and autumn season. So out of these 5 seasons, spring season and autumn season, these are known as a short season. Spring is in the month of March. Okay, so it also indicate the end of winter. ठीक है,
स्प्रिंग ये भी इंडिकेट करता है कि अब विंटर सीजन क्या है, इसका एंड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्लोली स्लोली डे और नाइट इक्वल होने लगते हैं और आफ्टर दैट समर सीजन स्टार्ट बिगिंस. In the same manner, this autumn is a short season and it also indicate the beginning of a winter season. ठीक है, ये किसकी बिगिनिंग बताता है, विंटर की. ठीक है, यहाँ मॉनसून सीजन एंड होता है और जब ऑटम सीजन जब स्टार्ट होता है तो ऑटम सीजन जब ये शॉर्ट सीजन है, ठीक है, व्हेन द ऑटम सीजन एंड, सो इट इंडिकेट द बिगनिंग ऑफ द विंटर सीजन. ये क्या इंडिकेट करता है, विंटर सीजन की बिगनिंग. और स्प्रिंग क्या इंडिकेट कर रहा था, विंटर सीजन का एंड. और आफ्टर दैट कौन सा सीजन स्टार्ट हो रहा था, दैट इज समर सीजन. ओके, नाउ व्हाट हैपन्स इन दिस सीजन. अब अक्टूबर में मैंने बताया ना कि ऑटम क्या है, ये बिगनिंग बताने लगता है. किसकी बिगनिंग बताने लगता है, ठीक है, ऑटम विंटर की. तो अब यहाँ कैसा होता है, वेदर, वेदर बिगिंस टू, अब यहाँ पे क्या होगा, वेदर वेदर बिगिंस to cool and the days start to become a little shorter. अब धीरे धीरे वेदर कैसा होने लगता है, कूल्स होने लगता है और डे क्या हो जाते हैं, बिकम लिटिल शॉर्टर. क्योंकि विंटर में क्या होते हैं, डे शॉर्ट हो जाते हैं और नाइट्स क्या हो जाती हैं, लॉन्ग हो जाती हैं. डे बिकम शॉर्ट एंड नाइट्स बिकम लॉन्ग. सो दिस शॉर्ट सीजन इज नोन एज ऑटम सीजन. नाउ व्हाट हैपन इन दिस सीजन. अब इस सीजन में होता क्या है, ठीक है, पहले हमने पढ़ लिया ये सीजन किस, द रेनी सीजन इज फॉलोड बाय ऑटम. फिर बाकी चीजें डिस्कस कर ली, ठीक है, किसकी स्टार्टिंग बताता है. तो यहाँ से जब ऑटम के बाद किसकी स्टार्टिंग हो जाती है, विंटर की स्टार्टिंग हो जाती है. ठीक है, नाउ what happens or what causes in this season, what is the effect of this season. So in this season especially you will observe that student, the trees lose their leaves. Okay, in this season the change which you will observe in this season is that the change which you observe in this season is that the trees lose their leaves. ठीक है, इसलिए इसको हिंदी में पतझड़ का मौसम भी बोलते हैं. ठीक है, क्योंकि इस समय पेड़ों के पत्ते झड़ने लगते हैं. ठीक है, और फिर न्यू लीव्स आते हैं. सो दिस सीजन इज आल्सो कॉल्ड द फेस्टिवल सीजन. ठीक है, और अनदर इंपॉर्टेंट अबाउट दिस सीजन इज दैट दिस सीजन इज आल्सो नोन एज द सीजन ऑफ फेस्टिवल. Another importance of this autumn season is that it is also known as the festival of season. Okay, because many festivals or main festivals of Hindus are celebrated in this month, like Dishera when Ram killed Ravan. So we celebrate every year this festival. Is it clear? And the name of the festival is Dishera. Dishera
दुर्गा पूजा and Diwali. So this season is also known as the season of festival. So Dishera, on this day Lord Shri Ram killed Ravan, and before Dishera we celebrate Durga Puja. We worship goddess Durga for 9 days, and on the 10th day every year we burn, ठीक है, एवरी ईयर हम लोग रावण के पुतले को जलाते हैं, जिसे उस फेस्टिवल को हम लोग क्या बोलते हैं, दशहरा बोलते हैं, ठीक है, दशहरा हो गया। दुर्गा पूजा कब सेलिब्रेट करते हैं, दशहरे से पहले, एंड दिस इज वी वर्शिप गॉडेस दुर्गा फॉर 9 days। एंड दिवाली, दिवाली इज आल्सो ए वेरी important festival of Hindus. Diwali is also a very important festival of Hindus. So after 14 years, ठीक है, Lord Shri Ram come back to Ayodhya after killing Ravan. So the people of Ayodhya, they celebrate when Lord Shri Ram कम बैक टू अयोध्या। तो इस दिन भगवान श्री राम के आने की खुशी में अयोध्या के लोगों ने सारे घर घर में दीपक जलाए, दिए जलाए। इसीलिए स्पेशली आप लोग देखते होंगे कि दिवाली को हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत से दिए जलाए जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट आल्सो, और बच्चे इसे बहुत इंजॉय करते हैं because they burn lot of crackers on this festival every year. Okay, so this all about the autumn season। एक रिकैप्चुलेशन कर लेते हैं बेटा, जिससे आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। सबसे पहले मैंने आप लोग को क्या बताया, द रेनी सीजन इज फॉलोड बाय ए शॉर्ट सीजन दैट इज नोन एज ऑटम, एंड इन विच मंथ, देखो इससे रिलेटेड मैं अभी डिस्कस कर ले रहा हूं टीचर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, आप सोचते हो कि बुक के एमसीक्यू आएंगे, नहीं, इट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द चैप्टर, कैन कोई भी चैप्टर से कहीं से भी एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। सो सी 5-6 लाइन आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड, ऑन फ्रॉम द सेम लाइन आई विल आस्क मेनी क्वेश्चन विद यू, मेनी क्वेश्चन, जिससे तुम्हें अंडरस्टैंडिंग ये आ जाए कि एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे टीचर आस्क कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने पढ़ाया उसको रिकैप्चुलेट कराता हूँ, फिर क्वेश्चंस करवाता हूँ। द रेनी सीजन इज फॉलोड बाय ए शॉर्ट सीजन ऑफ ऑटम और इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, ये किस मंथ में आता है, अक्टूबर में, ठीक है। वेदर बिगिंस टू कूल एंड द डेज स्टार्ट टू बिकम शॉर्ट, लिटिल शॉर्टर, ओके। सेकेंड पॉइंट, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट thing you will notice or you will observe in this season, you will observe that the trees lose their leaves, this thing we will observe in this। जैसे स्प्रिंग सीजन में हमने ऑब्जर्व क्या किया था कि बहुत से गार्डन में फ्लावर्स बहुत होते हैं, बीज और बटरफ्लाइज आप लोग देखोगे फ्लावर्स के चारों ओर घूमते रहते हैं, बिकॉज दे हैव देयर फूड इन द फ्लावर दैट इज नेक्टर, ओके। तो वहाँ पे बहुत सी हरियाली आपने देखी, बहुत से फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावर्स होते हैं स्प्रिंग में, और यहाँ क्या है, द ट्री लूज देयर लीव्स, यहाँ क्या आपने इस सीजन में देखा, जो ट्रीज हैं दे लूज देयर लीव्स। नेक्स्ट है दिस फेस्टिवल, दिस सीजन इज आल्सो नोन एज ए सीजन ऑफ फेस्टिवल, क्योंकि हिंदूज के 3 मेन फेस्टिवल ऑफ हिंदू रिलीजन वी आर सेलिब्रेटिंग इन दिस मंथ, दैट इज Dashera, okay, on this day Lord Shri Ram killed Ravan, so every year we celebrate Dashera। Durga Puja is celebrated before Dashera, 9 days we worship goddess Durga, and Diwali is celebrated when
Lord Shri Ram come back to Ayodhya. So these are all the points about autumn season. Now listen how the question can be asked on this topic. The rainy season is followed by the short season. What is the answer? Autumn season. Is it clear? Next question. Which season come before winter? Again the answer autumn season, क्योंकि autumn के बाद ही winter आता है. ठीक है. So which season is celebrated? Which season is comes before winter season? That is autumn. Okay, this is the second question. In which season weather begins to cool and the days start to become a little shorter? So that is also a which season? Autumn season. Okay. In which season we celebrate Dashera, Diwali, Durga Puja? Then again the answer is autumn season. Tell the name of the season in which trees lose their leaves. So again the answer is autumn season. So in this manner teacher can ask many MCQ questions from this related topic, that is autumn season. Okay. Now next is how season affects us. How seasons affect us. Now we will discuss this. Our lives are deeply affected by seasons. ठीक है. ये सीजन जब डिफरेंट सीजन में तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा था तो भी मैंने सारे सीजन के इफेक्ट्स भी डिस्कस किए थे, लेकिन अब ये पूरी एक कंप्लीट समरी है. क्यों? यहाँ हमने 5 सीजन पूरे डिस्कस कर लिए. अब हम लास्ट में देखेंगे कि ये जो सारे सीजन हैं इनके वजह से हमारे प्लांट्स और एनिमल सब पे क्या इफेक्ट पड़ते हैं. ठीक है. दैट वी विल डिस्कस नाउ. So our life are deeply affected by the season. First point, how the food we eat. Okay, the food we eat. फर्स्ट पॉइंट इज, देखो मैंने जैसे बताया था समर में स्पेशली हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम ईट करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, ऐसे फ्रूट्स खाते हैं जिसमें वाटर बहुत ज़्यादा होता है. क्योंकि जब वेदर बहुत हॉट होता है ना, देर इज लॉट ऑफ स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी. इज इट क्लियर? सो तो वेदर से हमारी फूड हैबिट्स भी चेंज होती हैं. ठीक है. सो एट द टाइम ऑफ ए समर वी ईट many fruits and especially those fruit which contain large amount of water in them. ठीक है. जैसे वाटरमेलन भी बताया था आपको. ठीक है. सो इट चेंज आवर फूड हैबिट. और अगर विंटर में आ जाते हो तो विंटर में देखो हम लोग को हॉट सूप्स पीना अच्छा लगता है, टी है, कॉफ़ी है, मिल्क है, हॉट मिल्क. सो एंड दिस आवर ईटिंग हैबिट आल्सो चेंज with the season. Another is clothes we wear. ठीक है. समर में हम लोग कॉटन क्लोथ्स वेयर करते हैं, मॉनसून में हम लोग क्लोथ्स वेयर करते हैं, उसके साथ साथ अपने को रेन से प्रोटेक्ट करने के लिए अम्ब्रेला और रेनकोट यूज करते हैं. डिस्कस किया था ना हमने. और इन द विंटर वुलन क्लोथ्स हम लोग वेयर करते हैं सो डैट द आवर बॉडी इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द कोल्ड विंड्स.
और जिससे कि वुलन क्लोथ पहनने से हमारी बॉडी क्या रहती है, वार्म रहती है। देखो आप लोग देखते होगे कि एनिमल्स जो होते हैं, आपने देखे एनिमल्स की बहुत बड़े बड़े हेयर्स होते हैं बॉडी में, क्योंकि वो हमारी तरह कपड़े तो नहीं पहनते, तो उन हेयर से उनकी बॉडी क्या रहती है, वार्म रहती है। इज इट क्लियर? उन हेयर से वो बात अलग है कि लोग अपने पेट्स को स्वेटर पहना देते हैं, वो तो आप पहना देते हो, लेकिन आप जनरली वाइल्ड एनिमल, जो एनिमल्स फॉरेस्ट में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, या स्ट्रीट एनिमल्स हैं जो इधर उधर गलियों में घूमते रहते हैं, तो आप देखते हो वो कुछ नहीं होता है। सो जो उनके बॉडी के जो हेयर्स होते हैं ना, वही उनके बॉडी को क्या करते हैं, वार्म रखते हैं। वो उनके बॉडी को क्या करते हैं, वार्म रखते हैं। ठीक है। द फूड वी ईट, द क्लोथ्स वी वियर एंड द एक्टिविटीज वी डू चेंज फ्रॉम सीजन टू सीजन। ठीक है। अब देखो स्पेशली हम लोग विंटर के समय इंडोर गेम्स को ज़्यादा वो करते हैं। ठीक है। जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है, अगर आप हिल स्टेशंस की बात करो, तो इंडोर गेम्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं हम लोग विंटर में। ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल पीपल लिविंग इन हिलीज एरिया वियर वुलन क्लोथ, वाइल दोज लिविंग इन हॉट एरिया वियर कॉटन क्लोथ। जो हिलीज एरिया में लोग रहते हैं वो वुलन क्लोथ वेयर करते हैं, और जो हॉट वेदर वाले एरियाज में रहते हैं दे वेयर कॉटन क्लोथ्स। ठीक है। सो ये हो गया हाउ सीजन इफेक्ट आवर लाइफ। और एनिमल्स का भी मैंने आप लोग को बताया था। सम एनिमल्स एट द टाइम ऑफ ए विंटर के समय कुछ एनिमल्स होते हैं जो लॉन्ग स्लीप पे भी चले जाते हैं, पूरे विंटर भर वो सोए ही रहते हैं। ठीक है। जिसे हमने आपको क्या बताया था, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइबरनेशन। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज हाइबरनेशन। सम एनिमल गो टू लॉन्ग स्लीप ड्यूरिंग द विंटर सीजन, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज हाइबरनेशन। नाउ नेक्स्ट है, थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो इसमें एक लिस्ट दी है, ट्राई दिस। ठीक है। अब बुक्स में कुछ नाम है, समर, रेनी सीजन में, एंड विंटर। ओके। नाउ स्वेटर, व्हेन वी वियर स्वेटर, तो स्पेशली वी वियर स्वेटर इन विंटर। ठीक है। स्वेटर हम कब वियर करते हैं बेटा, विंटर सीजन में। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है टी। तो टी जो हॉट चीजें हैं हम लोग ज्यादा विंटर में प्रेफर करते हैं। वैसे ये एक हैबिट है, वैसे टी को हम लिखेंगे विंटर ही में, लेकिन बेटा ऐसा नहीं है कि हम समर में टी नहीं, हाँ विंटर में ज़्यादा टी हम लोग पीते हैं, क्योंकि उस समय जानते हो जितना हॉट सूप पीते हैं उससे हमें बॉडी को वार्म मिलती है। लेकिन ये टी पीना, कॉफ़ी, ये सब एक क्या है, हैबिट है। अगर आपको हो गई है तो आप इसके बिना नहीं रह सकते। तो जो लोग टी पीते हैं वो समर में भी पीते हैं, लेकिन हमने इसको विंटर में इसलिए रखा है क्योंकि विंटर में ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं। जैसे हो सकता है समर में 1-2 टाइम्स दे ड्रिंक टी, विंटर में यही चीज़ वो 4-5 टाइम्स कर दें या 6-8 टाइम्स कर दें। ठीक है। सो दैट इज़ द रीज़न मैंने इसे विंटर वाले बॉक्स में रखा। ऐसा नहीं है जैसे टी पीने की आदत है वो सारे सीजन में पिएगा, चाहे फिर वो विंटर हो या रेनी हो या समर हो या ऑटम हो, ठीक है, या स्प्रिंग सीजन हो। क्योंकि जो हैबिट हो जाती है, देखो जैसे अब हम लोग अब स्पेशली बोला गया कि हम लोग आइसक्रीम कब ईट करना पसंद करते हैं स्पेशली, तो हम लोग समर में प्रेफर ज़्यादा करते हैं आइसक्रीम। ठीक है। लेकिन अब कुछ लोग की हैबिट है, कुछ लोग, अब देखो सबकी डिफरेंट डिफरेंट हैबिट्स है। कुछ लोग विंटर में भी ठंडा ही पानी पी लेते हैं। अगर आप हिल, जैसे हम लोग टोटली विंटर आती है तो फ्रिज रेफ्रिजरेटर में बॉटल्स रखना बंद कर देते हैं, ऐसा ही ना करते हैं हम लोग, बॉटल्स रखना बंद कर देते हैं। तो हमें लगता है कि इस समय हम लोग गर्म पानी पी रहे हैं, हॉट वाटर पी रहे हैं, चिल्ड नहीं पी रहे हैं जैसे रेफ्रिजरेटर का। बट इफ़ यू गो टू द हिल स्टेशन, अगर आप हिल स्टेशन जाओ, पहाड़ों पे जाओ, तो वहाँ नॉर्मल टैप का पानी ही बहुत ठंडा होता है, जो आपके
यहाँ समर में आप लोग चिल्ड करके बॉटल पीते हो ना पानी, एकदम बॉटल्स को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं, जिससे पानी ठंडा हो जाए, चिल्ड हो जाए, अच्छा लगता है गर्मियों के दिनों में। वैसा वाटर तो वहाँ सर्दियों में होता है, जो हिल स्टेशन एरिया होते हैं वहाँ के टैप्स में एकदम ठंडा पानी आता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एरिया ये बात कर रहे हैं। ठीक है, सो अब वही चीज़ मैंने बताई, जैसे अब देखो ईटिंग आइसक्रीम, आइसक्रीम के लिए मेन मंथ तो क्या है, समर ही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ लोग विंटर में भी आइसक्रीम खा लेते हैं, खाने वाले खाते हैं। ठीक है, लेकिन हमने वो लिखना है जो ज़्यादा लोग करते हैं। ठीक है, तो लोग सबसे ज़्यादा टी प्रिफर करते हैं विंटर मंथ में। वैसे तो टी ऐसी चीज़ है कि जिसको हैबिट है वो सारे मंथ में करेगा, लेकिन ज़्यादा विंटर में करते हैं। ठीक है, फिर फैन, फैन कब हम लोग यूज़ करते हैं, समर सीजन में। ठीक है, फैन का कब यूज़ करते हैं, समर में। फैन है, एसी है, कूलर है, ऑल दीज थिंग्स वी आर यूजिंग इन द समर सीजन। जैसे अभी विंटर है, विंटर अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई, अभी विंटर है, कोई के घर में नहीं मुझे लगता पंखा चलता होगा। ठीक है, सो समर में हम लोग करते हैं। और फिर नेक्स्ट है आइसक्रीम, तो आइसक्रीम सबसे ज़्यादा हम लोग प्रिफर करते हैं बेटा समर्स में। सबसे ज़्यादा आइसक्रीम हम लोग कब प्रिफर करते हैं, आइसक्रीम समर में। ठीक है, नेक्स्ट है सूप, तो हॉट सूप हम लोग कब पीते हैं, ज़्यादा विंटर में प्रेफर करते हैं। इज इट क्लियर। फिर है अम्ब्रेला, अम्ब्रेला हम लोग कब यूज करते हैं, रेनी सीजन में। अम्ब्रेला स्पेशली हम लोग रेनी सीजन में यूज करते हैं। ठीक है, पर ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा हॉट होती है, बहुत ज़्यादा सनलाइट धूप बहुत ज़्यादा होती है, तो भी लोग वॉकिंग डिस्टेंस में उस समय भी अम्ब्रेला का यूज़ करते हैं कि सन की लाइट से अपने को सेव करने के लिए। लेकिन स्पेशली जो अम्ब्रेला हम लोग यूज़ करते हैं वो रेनी सीजन में करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है मैंगो। ठीक है, मैंगो समर में। ठीक है, जून जुलाई में आने लगता है मैंगो, तो उस समय समर का ही सीजन होता है। ठीक है, तो मैंगो समर में आ गया। रेन कोट कब पहनेंगे, रेनी सीजन में। We wear it in a rainy season to protect us from the rain. लास्ट वन है, हो गया, हाँ ठीक है, लास्ट है बोट। तो बोटिंग हम लोग सबसे ज़्यादा कब करते हैं, समर सीजन में करते हैं। देखो मानसून सीजन में तो बिल्कुल नहीं जाते हैं, मानसून सीजन में तो आप लोगों को पता है फ्लड आती है। इज इट क्लियर। मानसून सीजन जब होता है इट मीन्स लॉट ऑफ रेनफॉल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। इस समय इतना एक्सेस वाटर होता है रिवर्स में, ड्यू टू दैट दे स्टार्ट ओवरफ्लोइंग एंड सबमर्जिंग द सराउंडिंग एरियाज। ठीक है, अगल बगल एरिया सब उसमें डूबने लगता है, और इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इस कंडीशन को हम लोग फ्लड्स बोलते हैं। ठीक है, इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इस कंडीशन को हम लोग फ्लड्स बोलते हैं। तो बारिश मानसून सीजन में कभी भी बोटिंग हम नहीं कर सकते। विंटर में ठंड बहुत ज़्यादा होती है तो भी नहीं करते हैं। ठीक है, विंटर में बहुत ठंड लगती है, विंटर के समय अगर आप रिवर बैंक पे जाओगे तो जब हवा चलेगी तो आपको बहुत ज़्यादा ठंडा लगेगा। इज इट क्लियर। तो स्पेशली हम लोग बोटिंग किस सीजन में करते हैं, दैट इज इन समर सीजन। स्पेशली हम कब करते हैं, समर सीजन में। ठीक है, ये कंप्लीट कर लिया। देयर लिस्ट ऑफ फ्यू थिंग्स आर गिवन एंड वी हैव टू अरेंज देम अकॉर्डिंग टू द सीजन। तो ये हम लोग कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो टॉपिक दिया क्लाइमेट, तो क्लाइमेट तो ऑलरेडी मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि कोई द टर्म क्लाइमेट रिफर टू द वेदर कंडीशन दैट ए प्लेस हैज ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फॉर सेवरल ईयर। ठीक है, क्लाइमेट उस कंडीशन को कहते हैं जो बहुत लंबे समय से, अगर जैसे हम पहाड़ों की बात करते हैं, हिल्स की, माउंटेन्स की, तो वहाँ का वेदर क्या है, बहुत ठंडा है, पहाड़ों पे सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो इसलिए
जो चीज़ बहुत लॉन्ग समय से चली आती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाइमेट बोलते हैं। जैसे हम लोग यहाँ यूपी में रहते हैं, ये कैसा है, हॉट एरिया है, ठीक है। तो इसका ये मतलब नहीं है बेटा कि यहाँ दूसरे सीज़न नहीं होते, सारे सीज़न होते हैं, यहाँ भी ठंड पड़ती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कई सालों से होता चला आ रहा है फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम, जो सबसे ज़्यादा जो यहाँ का वेदर रहा है वो क्या रहा है, हॉट रहा है। इसलिए यहाँ के क्लाइमेट को क्या बोला गया, हॉट। और अगर आप हिल स्टेशन की बात करो तो सबसे ज़्यादा वहाँ क्या है, हजारों सालों से लॉन्ग समय से वहाँ सबसे ज़्यादा क्या पड़ती है, ठंड पड़ती है। इसलिए वहाँ का क्लाइमेट क्या हुआ, कोल्ड क्लाइमेट हुआ। किसका, हिल स्टेशन का। ओके, थैंक यू।